Hello students, how are you all? Hope you all are good. I, Abhishek Tripathi, welcomes you on our YouTube learning channel. Today, I'm going to explain the very first chapter of class 9 maths. Chapter name is number system. In our previous video, we have already discussed about the types of rational numbers, how to find the rational numbers between two given numbers, and also the type of irrational numbers and how to locate them on a number line. Today we are going to talk about the real numbers and its decimal expansion. ओके बहुत ध्यान से देखेंगे आप और बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है. व्हाट द टुडेज टॉपिक इज रियल numbers. Real numbers means all the type of numbers which can be represented on number line. Those numbers are called real numbers and their decimal expansion. What? Decimal expansion. Decimal expansion. Real numbers and their decimal expansion. So you all know very well that to represent any number in decimal, you have to divide that particular number into 10 equal parts. In general, अगर आप किसी नेचुरल नंबर को लेके जा रहे हो और you want to represent that particular number on decimal, so you have to divide that particular number into 10 equal parts. So real numbers, this chapter belongs to number system and this chapter states that rational numbers and irrational numbers. We have talked about the rational and irrational numbers. So हम बात करेंगे रियल नंबर्स में. तो आपको पता है कि रियल नंबर्स में एक टाइप आता है नंबर्स का, वो है क्या है? रेशनल नंबर. ये नंबर बार बार डेफिनेशन इसकी यूज हो रही है, तो आप सबको अब डेफिनेशन याद हो चुकी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ. Rational number means any number which can be represented in the form of p by q and q is not equals to 0. This is what the definition of rational number. So for example, I am having a number 5 upon 10. 5 upon 10 is a rational number. It can be represented in decimal format. इसका सिंपल सा मीनिंग होता है 5 upon 10 का, ये सिंपल सा मतलब होता है 5 is being divided by 10 means you are dividing that 5 with 10. और अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में बात करें तो you are dividing the p with q. p को डिवाइड कर रहे हो आप किसके साथ? q के साथ. तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या होगा? 0 times. So you will place a decimal over here and you will use 1 0 and 10 5 ja 50, remainder 0. Okay, so this is what rational numbers actually means, division, and division also may be extended up to the decimal. So in this particular question you have got the remainder 0. Let's take one more example. The second example I am taking here, 10 upon 3. 10 upon 3. Now this means 10 is being divided by what? 3. So divide 10 by 3. 3 3s are 9 minus 1. 1 is not divisible with 3. So we will have a decimal. Why we are using decimal? Because we want to represent the real numbers in their decimal expansion. Okay, that is why we are using decimal. So after placing a decimal point over there in the quotient, you can put the zeros as many zeros you require. Then again 3 3s are 9, remainder 1, 3 3s are 9, remainder 1, means you will never get this remainder as 0. You will never get the remainder as 0. So there is only two cases. One is either you get the 0, second is either you will not get the 0. दो ही केस होते हैं कि या तो आपको 0 रिमाइंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो हम बात करते हैं दोनों केसेस की वन बाय वन. केस नंबर 1, रिमाइंडर becomes 0. Remainder becomes what? 0. सेकेंड केस क्या है इसका?
रिमाइंडर नेवर बी जीरो। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, या कोई केस है क्या जब हम रिमाइंडर की बात कर रहे होंगे तो रिमाइंडर या तो जीरो होगा या तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो होगा तो इट्स ओके, आफ्टर अ सर्टेन स्टेप्स द डेसिमल कैन बी टर्मिनेटेड। कुछ डिवीजन करते जाएंगे और उसके बाद हमारा डेसिमल क्या हो जाएगा, जब रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा तो डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाएगा। कब, जब ये रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो। रुक जाना मतलब टर्मिनेट हो जाना। सो व्हेन यू विल गेट द रिमाइंडर जीरो दैट इज व्हाट वी कॉल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, व्हेन यू गॉट द रिमाइंडर जीरो, that kind of division is said to be a terminating division or terminating decimals। अगर आपको रिमाइंडर जीरो मिल जा रहा है तो आपका जो क्वोशंट आएगा वो कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिवीजन आप कर नहीं पाओगे। सो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तब क्या होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्वोशंट चलता चला जाएगा जब तक हमारा टाइम है, जब तक हमारा इच्छा है तब तक वो होता रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। सो इन दिस केस every decimal is said to be a terminating decimal. Which type of terminating decimal? In this case you will always get terminating decimal. In this section you will get non-terminating decimal. Non-terminating decimals. ओके, नाउ नॉन टर्मिनेटिंग, इसका क्या मतलब है, कभी ख़त्म ना होने वाले। ठीक है, कभी ख़त्म ना होने वाला मतलब ये हमेशा डिवीजन चलता रहेगा। अगर हम इसमें एक और छोटा सा एग्जांपल लें, इफ़ आई टेक 10 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 10 डिवाइडेड बाय 7, मैं डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ। 7 से डिवाइड करना किसको, 7 से डिवाइड करना किसको, 10 को। 7 1 जा 7 माइनस 3 डेसिमल 30, 7 4 जा 28 माइनस 2 20, 7 2 जा 14 माइनस 6 60 आया, 7 8 जा 56 minus 4 0 means you will get that neither this division is being terminate and neither it is repeating the numbers। okay, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये तो फाइनल हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप होते हैं, वी हैव टू टाइप्स इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। वन इज व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग मीन्स numbers are, the division is not going to end but the quotient value is always repeating, continuously repeating। जैसे इसमें देखिए, आप कितना भी डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा, 3 3 3 3 फॉर द इनफाइनाइट टाइम। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सेकेंड में देखिए 1.428 एंड फिर नंबर चेंज हो रहे हैं और डिवीजन भी खत्म नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन repeating। So when the remainder becomes 0 we have terminating decimal, when the remainder does not become 0 then we have two type of decimals, one is non terminating and repeating decimal, another one is non terminating and non repeating decimal। okay, this is what the two cases tell us। now moving to the examples, चलते हैं आगे। समझ में आपको दो ही तरह के डेसिमल हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर वो टर्मिनेटिंग है तो आज नहीं तो कल या 2 या 4 या 10 स्टेप बाद वो ख़त्म ही हो जाएगा, पर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें दो टाइप है। एक ये कि वो उसी नंबर में बार बार हमको क्वोशंट में सेम वैल्यू मिलती जाएगी तो वो रिपीटिंग है, और या तो ऐसा होगा कि हमारी वैल्यूज़ बार बार चेंज होगी क्वोशंट में डेसिमल के बाद, तो वो कहलाएगा नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं।
चलिए देखते हैं बहुत जैसा आसानी से। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 तो छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। सो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ पी ए बाई क्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपकी बुक में, नोटबुक में लिखा हुआ है, कोर्स बुक में लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, मैंने आपको जब कल बताया था इरेशनल नंबर में, तो अभी हमने दो टाइप के डेसिमल नंबर्स की बात की। पहला टाइप क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड दूसरा टाइप क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक टाइप, टर्मिनेटिंग सेकेंड टाइप। इन दोनों को आप रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? पर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कैन नेवर बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये बात आप याद रखेंगे। कौन कौन रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू में? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, they can be represented in the form of p by q, and non-terminating plus repeating can be represented in the form of p by q। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 3.14268 एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका। 3.14268 देखिए, डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल खत्म हो गया है। इट मीन्स दिस इज व्हाट? अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा डेसिमल हुआ? टर्मिनेटिंग। कैसे पता चला? 8 के बाद ये क्या हो गया है? रुक गया है। ठीक है, 8 के बाद इसमें कोई और तरीके का डिवीजन या आगे कोई डेसिमल नहीं है। इसको हमको किस में बनाना है? वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू इज व्हाट? पी बाई क्यू इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो हमको इसको किस में रिप्रेजेंट करना है? पी बाई क्यू। और क्यू क्या होना चाहिए? क्यू शुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। वी हैव दिस 3.14268 एंड पी तो है हमारे पास, क्यू नहीं है। क्यू कितना होगा? तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि डेसिमल हटाने के लिए हम उतने जीरो से डिवाइड कर देते हैं। डेसिमल हटा के हम उतने जीरो से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इसका डेसिमल हटाना है तो कितने डिजिट पे डेसिमल लगा है? 1 2 3 4 5 6। तो उतने जीरो आप नीचे रख लीजिए। ठीक है, जो डेसिमल है उसकी जगह क्या रख लीजिए? 1। क्लियर? तो अब ये डेसिमल क्या कर सकते हैं? आप हटा सकते हैं। डेसिमल गया क्या? हट गया डेसिमल। अब इसको अगर आप देखोगे तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ this is in the form of rational number. P is 3.14268 and Q is what? 1000000. Okay, so this particular decimal has been represented in the form of P by Q। समझ में आया? आपको क्वेश्चन मिलेगा आप कैसे करोगे, तो आपको सिर्फ डेसिमल डिजिट्स काउंट करनी है, जितने डिजिट्स में है उतने जीरो, और जहाँ पे डेसिमल लगा उसकी जगह पे 1, और इस तरीके से आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी? एग्जाम्पल नंबर 7 की। सो दैट दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा इसको कैसे होगा। ये इसको लिख लेंगे वीडियो पॉज करके, मैं कुछ देर रुक लेता हूँ, डिलीट कर दीजिए, फिर उसके बाद आप लोग रिज्यूम कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, ध्यान से देखिए। नाउ द क्वेश्चन सेज 0.333333 एंड सो ऑन। क्या है? 0.333333 एंड सो ऑन। इसको हम लिखते कैसे हैं? अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसमें इतने सारे नंबर ना लिख करके 3 के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। दैट कॉम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट द नंबर्स आर बीइंग रिपीट। नंबर्स बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं।
अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें, रेशनल नंबर में। सो व्हाट वी विल डू, वी विल अज्यूम दिस दैट दिस इज इक्वल्स टू 0.333, एक्स की वैल्यू इतने के इक्वल है। कोई कन्फ्यूजन, एक्स की वैल्यू इतने के इक्वल है। ये कंटिन्यूसली चला जा रहा है, ठीक है, टिल द लास्ट। हम इसको रेशनल नंबर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा, उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, पर जो एक्चुअल तरीका है, कैसे वो तरीका मिलता है हमको, उसके बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग द 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। तो इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10x, इधर मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं तो 3.333 एंड सो ऑन, ऐसा ही कुछ होगा 3.33 सो ऑन। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप सब, ये अब ये तो 10x तो ठीक है, अगर आप इसको देखो तो यू कैन राइट दिस लाइक, ऐसा लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना ऐसा, 3 अलग और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको यही मिलेगा। सो वी कैन राइट दिस लाइक दिस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 3 तो ठीक है एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, x। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर थी, x के बराबर, तो हम इसकी जगह x रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर कितना मिलेगा 3, बराबर कितना मिला 3, तो 10x माइनस x दैट इज 9x, तो 9x इज इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 3/9 दैट इज 1/3, that is 1/3. 1/3 is a rational number because the value of p is 1 and 3 is value of q. ये x जो था हमने माना था क्या है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। x क्या है, रेशनल नंबर है। ये तरीका समझ में आया आपको कैसे करना है। मैंने 10 का इंटू किया, आप 100 का इंटू कर लो, आप 1000 का इंटू कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सॉल्यूशन ऐसे ही आएगा और आंसर लगभग इतना ही आपको मिलेगा। कोई कन्फ्यूजन। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट 1.272727 दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। चलिए इसी के जैसा ही है वो, कुछ चेंजेस इसमें करते हैं, उसको देखिए, कोशिश करते हैं बना लेंगे उसको। चलिए देखते हैं अगला, इसको मैं यहाँ से बस हटा रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें। तो क्वेश्चन इज 1.2727, the question is 1.272727 and so on, ये तरीका है। अब इसको अगर आप देखोगे तो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1.27 एंड कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है किसमें बच्चों में, आपका रेशनल नंबर में। कैसे रिप्रेजेंट होगा ध्यान से देखेंगे। x की वैल्यू हमने कितनी मान ली 1.27 कॉम्प्लीमेंट। 27 कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 100। अब मैंने 100 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 डिजिट ऐसी हैं जो रिपीट हो रही, उसमें 1 डिजिट रिपीट हो रही थी तो 10 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रही तो मैं किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 का। चलिए ध्यान से देखिएगा, जब मैंने दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100x इज इक्वल्स टू 1.27 इंटू 100 कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 127, ये तो इतना आ गया। अब 127 को मुझको ब्रेक करना है, क्या करना है, ब्रेक करना है इस तरीके से कि मुझे x की वैल्यू मिल जाए।
तो 127 में से अगर मैं, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, आप समझाता हूँ फिर आपको। 100x इज इक्वल्स टू 126 प्लस 1.27, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट द सेम नंबर, 126 प्लस 1.27 कॉम्प्लीमेंट, यू विल गेट 127। तो हमको इस तरीके से तोड़ना है कि जो हमने x जिसको अज्यूम किया था वही हमको यहाँ पे प्लस में मिल जाए, ये ध्यान रखना आपको। चलिए अब हम देखते हैं आगे। 100x इज इक्वल्स टू 126 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इधर आके x क्या होगा? माइनस होगा। 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 126। 100x में से x माइनस हुआ तो कितना बचा? 90। 9x इज इक्वल्स टू 126। नाउ ट्रांसफर दैट 99, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 126 अपॉन 99। दिस इज योर रेशनल नंबर। ये फाइनल है क्या? हो सकता, इसको भी आंसर सही है ये। अगर आप और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? 126 को डिवाइड करेंगे अपन, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। और भी अभी डिवाइड हो सकता है 3 से, तो और सिंपलर डिवीजन करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सो दिस 1.2727 can be written in the form of 14/11 as a rational number। क्या किया मैंने? 2 डिजिट रिपीट थी तो 100 का इंटू किया, 100 का इंटू करने के बाद मुझको ये वैल्यू मिली। ये वैल्यू को मैंने इस तरीके से तोड़ा कि मुझको प्लस में क्या मिल जाए? x की वैल्यू। x की वैल्यू ये थी, वो मिल गई, और फिर हमने वैल्यूज को रिप्लेस किया और सॉल्व किया और हमको क्या मिल गया? सोल्यूशन मिल गया। आप लोग इसको लिखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9 आप खुद करके कोशिश करिए कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है ना। अब हम चलते हैं सीधे किसमें? एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन में। आज हम सिर्फ पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। चलिए अब आप एक चीज़ समझिए कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा। एक तो तुम्हारे पास तरीका है कि आप डिवाइड करके चेक कर लो, दूसरा तरीका है कि बिना डिवाइड करे कैसे बताओगे। तो देखो समझो, यहाँ पे हम बात करते हैं 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखो। इसमें हमारे को बताना है कि डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यही दो चीज़ें बतानी है। वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन फ्रैक्शंस गिवन रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो समझिए इस बात को। आपसे अगर कभी भी कोई बोले कि फाइंड दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन और रेशनल नंबर एंड से टेल अस दैट द गिवन रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो एक बात याद रखना है, जो हमारी वैल्यू होती है q, क्या होती है वैल्यू? q। ये सबको पता है q क्या कहलाता है, जो नीचे तरफ लिखा रहता है। तो q की वैल्यू अगर उसमें क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 5 और 2 और बोथ। समझिएगा ध्यान से। अगर q में जो भी वैल्यू लिखी हुई, फॉर एग्जांपल 10 लिखा है तो 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2 बोथ। फॉर एग्जांपल 15 लिखा हुआ है तो 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 3। ठीक है, तो 5 एंड 3 नहीं, सिर्फ 5 एंड 2 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए लिखा है 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2 बोथ लिखा हुआ है। तो अगर उसके q में ये 5 का मल्टीपल या 2 का मल्टीपल या 5 और 2 दोनों का, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 15 भी तो 5 का मल्टीपल है, 15 5 के साथ साथ 3 का भी मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल नहीं लेना, सिर्फ 5 का मल्टीपल, वो वाला जो 5 और 2 की टेबल में आता हो। ठीक है, ये यूँ कह लीजिए कि 5 और 2 का इंटू करने से जो भी वैल्यू मिले वही आपकी उसके नीचे होगी, तो आपका ये फ्रैक्शन, ये लॉजिक काम करेगा। तो टर्मिनेटिंग अगर है कोई चीज़ तो उसके q की वैल्यू या तो 5 होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए, या तो दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। 5 या 2 होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5 ही और 2 बस, यही बस हो, नहीं। 5 और 2 का मतलब ये है
कि 5 का मल्टीपल हो 5 हो, 10 हो, 20 हो, 40 हो, 2 का मल्टीपल हो 2 हो, 4 हो, 8 हो, ऐसे, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में या q की वैल्यू में ये दो चीज़ें हैं तो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग, और अगर इसके अलावा कुछ भी है तो हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रही बात? चलिए क्वेश्चन देखते हैं बहुत आसानी से। जैसे 36/100, 36/100, यू ऑल नो 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 बोथ, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। 1/11 नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों? क्योंकि 5 और 2 दोनों में से किसी की टेबल में ये नहीं आता। नेक्स्ट है 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। सो फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।